हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय बैच क्लास 4। तो आज हम फोर्थ क्लास के अंदर आ रखे हैं। 3 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी हो रखी है, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। और लास्ट के जो 3 वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो चैनल पर अपलोडेड है वो तीनों क्लासेस ही हैं। अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर रखी है तो उसको कंडक्ट करवा रखा है तो उसको अटेंड कर लीजिए। अब आज चौथी क्लास होने के बाद में अब हमारा जो 2 जून को फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा इसी एग्ज़ाम के लिए, जिसके अंदर आपकी 100 WPM और 120 WPM पर जो है आपको फ्री में मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उस मॉक टेस्ट को आप सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। तो इसका जो सारी डिटेल्स है वो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिलेगी। 2 जून को है तो 1 जून को वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए कर रखा है वो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज जो है हम हमारी क्लास शुरू कर देते हैं। 489 वर्ड्स का ये मैटर है, मैगी नूडल्स के ऊपर ये मैटर होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा मैटर है, काफ़ी पॉपुलर मैटर भी है। सो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको 100 WPM पर हम लिखेंगे, फिर इसको वापस से लिखेंगे 120 WPM पे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, अपनी डायरी रेडी कर लीजिए। गेट रेडी, 3, 2, 1, start. In writ petition, a notice is placed on record mentioning therein that a sample of the product Maggi noodles was drawn and forwarded for analysis. Stop. In view of the report received from the public health laboratory, there is a defect in the label which constitutes a contravention of the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act 1954. Stop. The petitioner was further informed that the petitioner had committed a breach of Rule 5 of the 1962 rules read with the Prevention of Food Adulteration Act. Stop. A notice was issued by the competent authority, that is, the food inspector and licensing authority. Stop. The petitioner, in response to the notice dated 17/7/2009, submitted its reply. Stop. It is submitted in the reply by the petitioner that the statement made on the label is a statement of facts. Stop. It is further stated that there is no breach committed by the petitioner of Rule 39 as alleged in the notice. Para. The department then issued a fresh notice to the petitioner on the same ground, alleging that the petitioner had committed a breach of the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act read with Rule 39 of the Prevention of Food Adulteration Rules 1955. Stop. The said notice was annexed with the report of the public analyst. Stop. The petitioner submitted its reply to the notice. Stop. The petitioner reiterated its submission of the statement of facts shown on the label of the product and denied the breach of Rule 39 of the PFA rules. Stop. The food inspector and the licensing authority suspended the license of the petitioner for the period of 5 days. Stop. It is stated in the order that the submission filed by the petitioner was not found satisfactory, and the authority arrived at the conclusion that the petitioner had committed a breach of Section 7 of the PFA Act and Rule 39 of the PFA rules. Para. The petitioner was intimated that they could avail themselves of the remedy of preferring an appeal to the appellate authority within 30 days from the date of receipt of the order. Stop. The petitioner, by availing themselves of the remedy, filed an appeal before the Commissioner of Food and Drugs Administration
and the appellate authority by order dated 14/5/2010 maintained the order of the food inspector by making a partial modification to the period of suspension, that is, the period was shortened and the license of the petitioner was suspended for 3 days. Stop. The learned senior counsel, appearing on behalf of the petitioner by inviting my attention to the relevant provisions of the Prevention of Food Adulteration Act and the rules framed thereunder, in his elaborate arguments, submits that the food inspector and the appellate authority maintaining the order of the food inspector partly committed a serious error. Stop. He further submits that the approach of both the authorities below is wholly unsustainable, as these authorities have failed to consider the relevant provisions in proper perspective. Stop. तो ये अभी हमने 100 WPM पर डिक्टेशन को लिखा है, 489 वर्ड्स इसके अंदर हैं। अब हम इसी डिक्टेशन को 120 WPM पे लिखेंगे। हमारी जो लाइव क्लास होती है डेली बेसिस पर, उसमें हम जो डिक्टेशन है वो 3 स्पीड पर लिखते हैं, 80 WPM, 100 WPM और 120 WPM। तो अभी आप जो है मैं आपको लिखवा रहा हूँ 100 पर हमने लिख लिया है, अब हम इसको 120 पे लिखेंगे। उसके बाद हम ये रूल्स जो हैं वो समझेंगे जितने भी इसके अंदर हो रखे हैं। जिन लोगों ने ये 100 WPM पे लिख लिया है वो अब 120 के लिए रेडी हो जाइए। एग्ज़ाम आपका दोनों ही स्पीड पे होने वाला है और फिक्स स्पीड पे नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशंस के साथ में रहेगा। अभी भी हमने जो इसको लिखा है वो पहले 100 WPM था, फिर बाद में जो है वो 103 104 पर हमने लिखा है, तो आप इसको फ्लक्चुएशंस के साथ में लिख रहे हैं। अब हम 120 वाले को भी फ्लक्चुएशंस के साथ में लिखने वाले हैं। तो सभी रेडी हो जाइए। गेट रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। In writ petition, a notice is placed on record mentioning therein that a sample of the product Maggi noodles was drawn and forwarded for analysis. Stop. In view of the report received from the Public Health Laboratory, there is a defect in the label which constitutes a contravention of the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act 1954. Stop. The petitioner was further informed that the petitioner had committed a breach of Rule 5 of the 1962 rules read with the Prevention of Food Adulteration Act. Stop. A notice was issued by the competent authority, that is, the Food Inspector and Licensing Authority. Stop. The petitioner, in response to the notice dated 17/7/2009, submitted its reply. Stop. It is submitted in the reply by the petitioner that the statement made on the label is a statement of facts. Stop. It is further stated that there is no breach committed by the petitioner of Rule 39 as alleged in the notice. Para. The department then issued a fresh notice to the petitioner on the same ground, alleging that the petitioner had committed a breach of the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act read with Rule 39 of the Prevention of Food Adulteration Rules 1955. Stop. The said notice was annexed with the report of the public analyst. Stop. The petitioner submitted its reply to the notice. Stop. The petitioner reiterated its submission of the statement of facts shown on the label of the product and denied the breach of Rule 39 of the PFA rules. Stop. The food inspector and the licensing authority suspended the license of the petitioner for the period of 5 days. Stop. It is stated in the order that the submission filed by the petitioner was not found satisfactory, and the authority arrived at the conclusion that the petitioner had committed a breach of Section 7 of the PFA Act and Rule 39 of the PFA rules. Para. The petitioner was intimated that they could avail themselves
of the remedy of preferring an appeal to the appellate authority within 30 days from the date of receipt of the order struck. The petitioner, by availing themselves of the remedy, filed an appeal before the Commissioner of Food and Drugs Administration and the appellate authority by order dated 14/5/2010, maintained the order of the food inspector by making a partial modification to the period of suspension, that is, the period was shortened and the license of the petitioner was suspended for 3 days. Struck. The learned senior counsel, appearing on behalf of the petitioner by inviting my attention to the relevant provisions of the Prevention of Food Adulteration Act and the rules framed thereunder, in his elaborate arguments, submits that the food inspector and the appellate authority maintaining the order of the food inspector partly committed a serious error. Struck. He further submits that the approach of both the authorities below is wholly unsustainable, as these authorities have failed to consider the relevant provisions in proper perspective. Stop. ये 120 के ऊपर लिखा है हमने, बीच में जो है 122-23 भी लिखी है, बाकी जो है वो 120 पर मेंटेन रहा है पूरा डिक्टेशन। मैगी नूडल्स के ऊपर है। मैगी के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, मैगी की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं MAGGIE, ई नहीं आता है, सिर्फ आई पे ये ख़त्म हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, वरना एक छोटी सी ई लगाने से आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। तो अब हमने ये डिक्टेशन लिख लिए हैं दोनों स्पीड पर। अब हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रूल्स हैं, इस मैटर में जितने भी वर्ड कैपिटल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैगी नूडल्स ही है, तो मैगी नूडल्स एक प्रॉपर नाउन हो गया है, इसलिए हम इसको कैपिटल लिखेंगे। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, कोई स्पेसिफिक चीज़ का नाम आ जाता है, उसको भी हमको कैपिटल लिखना पड़ता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, कोई स्पेसिफिक एक्ट होता है उसको कैपिटल लिखते हैं, और जो ईयर होता है उसको सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। फिर है रूल 5, रूल 5 है रेड विद रूल 5 है, तो ये रूल 5 जो है वो कैपिटल लिखे जाएंगे। फूड इंस्पेक्टर जो है वो हमारा जो है एक स्पेसिफिक पोस्ट है, उसको कैपिटल लिखना है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन है, उसको हम कैपिटल लिखेंगे। पब्लिक एनालिस्ट, ये भी एक स्पेसिफिक पोस्ट है, इसको हम कैपिटल लिखेंगे। PFA रूल्स स्पेसिफिक है, इसलिए इसको कैपिटल लिखा जाएगा। फूड इंस्पेक्टर एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये हमने देख ही लिया है, इसको हटा देते हैं। सेक्शन 7 जो है हमेशा कैपिटल आएगा। सेक्शन के साथ कभी भी कोई डिजिट आ जाए, सेक्शन के साथ जैसे 7 आ गया, 10 आ गया, 120 आ गया, कोई सा भी सेक्शन आए हमेशा कैपिटल आएगा। पर अगर सेक्शन के साथ में कोई डिजिट नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे 7 ना होता, तो फिर सेक्शन को आपको कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में है हमारे पंक्चुएशन रूल्स। सबसे पहला है स्टार्टिंग का ही इन रिट पेटिशन कॉमा। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि स्पेसिफिक रिट पेटिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इन रिट पेटिशन लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर आगे हम बता रहे हैं कि अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। तो हमारी बात जो है वो अ नोटिस से शुरू हो रही है। स्टार्टिंग में हमने ये लिखा है कि हमने इस स्पेसिफिक रिट पेटिशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है in view of the report received from the public health laboratory there is defect in the label comma which से पहले हमेशा कॉमा आता है। मैंने ये रूल आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, तो which से पहले कॉमा लग गया। which constitutes a contravention of the provisions of the prevention of food adulteration act 1954। अभी मैंने बताया था एक्ट के अंदर ईयर आ जाता है, तो ईयर को सेपरेट करते हैं कॉमा से। जो ये रूल्स मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ये सारे रूल्स बेसिकली मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, साथ में उसकी क्विज भी होती है। तो कोई रूल अगर जैसे विच का रूल है, तो उसके साथ में मैंने आपको 5 क्वेश्चन दे दिए, तो वो उसी दिन आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ ये विच के साथ कॉमा आएगा। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। पेटिशनर हैड कमिटेड अ ब्रीच ऑफ रूल 5 ऑफ द 1962 रूल्स। ये चीज़ जो है 1962 ईयर आ गया, ईयर के बाद में रूल्स आ गया। अगर रूल्स नहीं आता तो ईयर के जस्ट बाद लग जाता, पर हमने रूल्स भी लिखा है, तो यहाँ पे कॉमा लग के फिर आगे सेंटेंस शुरू करेंगे। रेड विद द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ईयर का हमेशा ध्यान रखना है, ईयर के जस्ट बाद कॉमा आता है, पर ईयर के साथ कुछ चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे रूल्स जुड़ा हुआ है, तो रूल्स के बाद कॉमा लगाना आपको पड़ेगा। फिर है अ नोटिस वॉज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज जो है हमेशा कॉमा के बीच में लिखा जाता है। I.E.
और आगे पीछे उसके कॉमा रहता है। फिर है द पेटिशनर रिस्पॉन्स टू द नोटिस डेटेड, डेट आ गई, डेट के बाद हमेशा कॉमा आपको लगाना ही होता है, यह आप हमेशा ध्यान रख लीजिए। डेट के बाद हमेशा कॉमा लगेगा, उसके बाद आगे का सेंटेंस चलेगा। फिर है कमिटेड अ ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एक्ट के बाद कॉमा लग गया। रेड विद रूल 39 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955, तो ये ईयर आ रहा है तो ईयर से पहले कॉमा लग गया, ये बता ही दिया है। सबमिशंस फाइल्ड बाय द पिटिशन वाज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी, एंड वर्ड आ गया, एंड वर्ड से पहले भी हमेशा कॉमा लगता है, जैसे कि विच वर्ड था वैसे ही एंड वर्ड भी है, वैसे ही वाइल वर्ड भी है और वैसे ही बट वर्ड भी है। ये सारे वर्ड्स हैं, इनके जस्ट पहले कॉमा लगता है अगर सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। और दूसरा रूल ये है कि सेंटेंस के बीच में आने के बाद आगे सेंटेंस और बनना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एंड के बाद दो वर्ड लिखें और सेंटेंस खत्म। जैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आया, अब आप एंड के पहले कॉमा लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है ये वर्ड तब ही कॉमा लगेगा। तो पहला जो सेंटेंस है वो तो यहाँ तक है, उसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस है वो यहाँ से द अथॉरिटी अराइव्ड एट द कंक्लूजन, तो ये दूसरा सेंटेंस बन रहा है एंड के बाद, इसलिए हमने एंड से पहले कॉमा लगाया है। सो ये रूल हो गया। फिर है फूड इंस्पेक्टर बाय मेकिंग अ पार्शियल मॉडिफिकेशन टू द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, फिर डेट इज आ गया तो वापस से तो डेट इज को हम कॉमास के बीच में रखेंगे। द पीरियड वॉज शॉर्टनड, एंड आ गया वापस से, एंड के बाद जो सेंटेंस नया बन रहा है इसलिए एंड से पहले कॉमा लगा दिए। उसके बाद में है, इसमें तो कोई रूल नहीं है तो ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली आपके सारे रूल्स होते हैं कॉमास के, कॉमा जितने भी यूज़ हुए हैं वो सारे हमने यहाँ पे सीख लिए हैं। इसके बाद ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन्ड है, जिनको भी जो मीनिंग समझ में ना आए वो यहाँ से देख सकते हो और इनके आउटलाइन भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये रिलेटेड मैटर्स हैं, रिलेटेड मैटर का मतलब है कि इसी टाइप के जो वर्ड्स हैं वो इन मैटर्स के अंदर भी हैं, तो आपने अगर ये नहीं लिखे हैं तो इनको लिख सकते हो। ये सॉफ्टवेयर के ऊपर मिलेंगे, तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर परचेज कर रखा है वो लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख पाएंगे। आउटलाइन जो है वो आपको अपलोडेड मिल जाएगी, आप डायरेक्टली टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर ये जो आउटलाइंस है वो आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है, यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। ये जो शीट है ये आप डाउनलोड करके रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है 17% हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास 3 जून को होने वाली है और जो 2 जून है उसको हमारा मॉक टेस्ट होगा, तो 1 जून को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब होगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है जिनके पास नहीं है वो सॉफ्टवेयर परचेज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेली क्लासेस लेते हैं, अभी जैसे मई चल रहा है तो मई के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो ये सारी मई के अंदर हो रखी है क्लासेस। ये सारे डिक्टेशन आप एक्सेस कर सकते हो क्लास को परचेज़ करने के बाद। मई के भी सारे मिलेंगे, अप्रैल के भी मिलेंगे, मार्च के भी मिलेंगे, फेब के भी मिलेंगे, और ये बाकी ये करीब 500 डिक्टेशंस और हैं अलग अलग स्पीड के ऊपर। जैसे 75 से 90 का बैच है, 105 से 115 का है और 95 से 105 का है, तो ये सारे डिक्टेशंस भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये काफ़ी सारे डिक्टेशंस हैं, अराउंड 500 डिक्टेशंस पुराने हैं, और डेली बेसिस पर जो डिक्टेशंस होते हैं ये मंथ बेसिस पर वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, और डेली हम 3 स्पीड पर डिक्टेशन को लिखते हैं। सो अभी जिनको ये क्लास अटेंड करनी हो, क्लास में एनरोल करना हो, वो एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इंग्लिश में लिखा है, मैं ये लीगल मैटर हमने लिखा है, क्लास में हम दोनों मैटर्स लिखते हैं, जनरल मैटर भी लिखते हैं, लीगल मैटर भी लिखते हैं। तो लीगल तो मैंने आपको लिखवा दिया है, जनरल जो है वो हमारी क्लास में लाइव क्लास में चलता है, तो वो भी आप वहाँ से लिख सकते हो। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।